ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 37। तो हम लोग श्लोक का रिपीट मैं बोलता हूँ, आप लोग रिपीट कीजिए। स्वप्राणान्यः परप्राणैः स्वप्राणान्यः परप्राणैः प्रपुष्णाति अग्रनखलः प्रपुष्णाति अग्रणकलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद् याति अधः पुमान्। यद्दोषात् याति अधः पुमान्। प्राणान्यः परप्राणैः प्रपुष्णाति गृणखलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद् याति अधः पुमान्। Translation and purport by Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Sri Prabhupada. A cruel and wretched person who maintains his existence at the cost of others' lives deserves to be killed for his own well-being. Otherwise, he will go down by his own action. Purport by Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Sri Prabhupada. A life for a life is just punishment for a person who cruelly and shamelessly lives at the cost of another's life. Political morality is to punish a person by death sentence in order to save a cruel person from going to hell. That a murderer is condemned to a death sentence by the state is good for the culprit, because in his next life he will not have to suffer for his act of murder. Such a death sentence for the murderer is the lowest possible punishment offered to him. And it is said in the Smriti Shastras that men who are punished by the king on the principle of life for a life are purified of all their sins, so much that they may be eligible for being promoted to the planets of heaven. According to Manu, the great author of civic codes and religious principles, even the killer of an animal is to be considered a murderer, because animal food is never meant for the civilized man, whose prime duty is to prepare himself for going back to Godhead. He says that in the act of killing an animal, there is a regular conspiracy by the party of sinners, and all of them are liable to be punished as murderers, exactly like the party of conspirators who kill a human being combinedly. He who gives permission, he who kills the animal, he who sells the slaughtered animal, he who cooks the animal, he who administers distribution of the foodstuff, and at last he who eats such cooked animal food are all murderers, and all of them are liable to be punished by the laws of nature. No one can create a living being despite all advancements of material science, and therefore no one has the right to kill a living being by one's independent will. For the animal eaters, the scriptures have sanctioned restricted animal sacrifices only, and for such sanctions are there just to restrict the opening of slaughterhouses and not to encourage animal killing. The procedure under which animal sacrifice is allowed
The scripture is good for both the animal sacrificed and animal eaters. It is good for the animal in the sense that the sacrificed animal is at once promoted to the human form of life and being sacrificed at the altar. And the animal eater is saved from grosser type of sin, eating meat supplied by organized slaughterhouses, which are ghastly places for breeding all kinds of material afflictions to the society, country, and people in general. The material world itself is a place full of anxieties, and by encouraging animal slaughter, the whole atmosphere becomes polluted more and more by war, pestilence, famine, and other unwanted calamities. Hare Krishna. ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषादि पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नाना शास्त्र विचारिणे शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालिको वंदे रूपम् सर्वसत्याहं विष्णु मत्तस्पतिर्ज्ञानं सोहनं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेदो वेदान्तकृत् वेद च। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का श्लोका नंबर 37। तो अभी तक हम लोग ने जो देखा, पीछे से अगर हम लोग आते हैं तो अश्वत्थामा ने जो पांडवों के जो 5 पुत्र सॉरी द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनका वध किया था, और उसके वजह से जो था मतलब ये बहुत ही घृणित काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से अर्जुन जो था वो उसको मारने के लिए भगवान कृष्ण के आदेश पर उसको भागा था, और उससे बचने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। ठीक है, तो वो करने के बाद हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आप भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो और उसको वापस खींच लो। तो वो सीक्वेंस में चलते हुए अभी यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि एक जो क्रूएल एंड रिचर्ड, उसका संस्कृत वर्ड कैसे बोलेंगे, तो खलह, तो जो खल है तो हम लोग जैसे हिंदी में भी देखते हैं खलनायक, तो खल मतलब जो है ना बहुत ही मतलब है ना हु इज ए रिचर्ड पर्सन। तो ऐसे जो खल व्यक्ति हैं जो दूसरों के प्राणों पे जीते हैं उनको तो मारना ही चाहिए, दे आर डिजर्व टू बी किल्ड। वो किसके लिए? उसके अपने फायदे के लिए, मतलब समाज का फायदा हो नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये समाज में एक कंटक है और इसको निकालना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, उसको उसके अपने फायदे के लिए उसको डेथ का पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज ही विल गो डाउन बाय हिज ओन एक्शन। नहीं तो अपने और ऐसे वो कर्म करता रहेगा और वो नीचे की तरफ जाता रहेगा। नीचे की तरफ मतलब पाताल जो है, नरक की तरफ वो बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, नीचे नीचे धीरे धीरे तो जाएगा, तो वो नीचे की योनियों में जाएगा, लेकिन फाइनली ही विल गो टू नरक। तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं इसको, और वो बोलते हैं मनु महाराज को कनेक्ट करते हैं, अपने शास्त्रों को कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि लाइफ फॉर लाइफ, जैसे इंग्लिश में है ना एन आई फॉर एन आई, तो वैसे ही लाइफ फॉर, अगर किसी ने एक जीव मतलब एक किसी जीव की हत्या की है तो उसकी भी हत्या होनी चाहिए। तो ये जो है ये बहुत ही एक एप्ट सही डिसीजन है ये, और उनके लिए खास करके जो मतलब बेशर्म लोगों की तरह दूसरों के प्राणों पे जी रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ है उसके लिए सबसे बेस्ट पनिशमेंट है उसको। मैंने कहीं बहुत साल पहले प्रभुपाद जी का एक लेक्चर भी सुना था, तो उसमें भी ये कहते थे कि जब ये मतलब जब डेथ सेंटेंस के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है, उसने उसको मारा है तो उसको थोड़ा सा उसको छूट दे देनी चाहिए, उसने गलती से किया है। बट
उसके लिए बेस्ट यही होगा, क्योंकि उसने जो पाप किया है वो तो अभी मतलब रिट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे अगर किसी ने मतलब बोलते ना कि कमान से अगर तीर निकल गया तो वापस नहीं ले सकते, वैसे उसने वो काम कर दिया है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि उसको भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और ऐसे करने से ही उसका भला होगा। वो जो है उसने जो वो कर्म किया है एक हत्या करने का, तो वो मुक्त हो जाए। मुक्त भाई मतलब विल से वो 100% उससे मुक्त नहीं होता, उसके लिए जो है उसका काफी जो मेजर चंक है उस पाप का वो खत्म हो जाता है, और बाकी जो है फिर वो अगले उसको योनि में जो भी मिलती है उसमें वो सहन करता है उसको, और उसको भोगता है उस सजा को। तो इट इज सच ए क्या बोलते हैं ना, इट हॉरिबल क्राइम, किसी जीव की हत्या करना। तो उसका सही पनिशमेंट यही है कि उसको मृत्यु दंड मिले, और ऐसा करने से उसी का भला होगा। और यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी मतलब ये भी कहते हैं कि सच ए डेथ सेंटेंस फॉर मर्डर इज द लोएस्ट पॉसिबल पनिशमेंट। और मतलब प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि ये जो डेथ सेंटेंस जो मृत्यु दंड है किसी मूर्ख या अज्ञ व्यक्ति के मायने में सबसे बड़ा है। अरे यार मृत्यु दंड मिल गया इसको तो सबसे बड़ा। बट प्रभुपाद इज सेइंग कि ये जो मृत्यु दंड है दैट इज द लोवेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट फॉर अ मर्डरर, यानी सबसे कम है। उससे भी और कुछ अगर होता तो वो देना चाहिए था, बट दैट इज द लोवेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट, क्योंकि उसके ऊपर का कुछ पनिशमेंट है नहीं। तो और ये भी कहते हैं स्मृति शास्त्र को कोट करते हैं कि इससे जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है, उसने जो कर्म किए हैं उसने जो पाप किए हैं उससे वो। और तो फिर कनेक्ट करते हैं इसको मनु महाराज से, और कहते हैं कि मनु महाराज ये भी कहते हैं कि अगर कोई किसी प्राणी की हत्या करता है, ही इज नॉट टॉकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नाउ, ही इज टॉकिंग, मनु महाराज जो है वो प्राणियों के बारे में कह रहे हैं। अगर कोई किसी प्राणी की भी हत्या करता है तो ही शुड गेट द सेम पनिशमेंट, तो वही पनिशमेंट मिलना चाहिए उसको। क्योंकि वो भी जो है एक जीव की हत्या कर रहा है। प्रभुपाद जी हम लोग देखेंगे आगे पर्पट में कहते हैं कि हमारा मटेरियल साइंस जो कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन वो एक लिविंग बींग एक जीव नहीं बना सकता, एक छोटी चींटी नहीं बना सकता, एक मच्छर नहीं बना सकता। तो कितना भी एडवांस हो जाए तो सब कुछ बना ले, लेकिन एक लाइफ जो है वो नहीं बना। तो साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं है, इट्स ऑल मैटर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल। तो प्रभुपाद जी इनको चैलेंज करते हैं, ठीक है मैं तुमको एक केमिकल देता हूँ, बोलो बताओ क्या केमिकल चाहिए तुमको, आई विल गिव दैट केमिकल टू मेक लाइफ उसमें ला के दो। दे वर नेवर एबल टू डू दैट। तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं बना सकते तो उसको मार क्यों रहे हो। तो वो मारने का भी हक उनको नहीं है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी जब कली जो था वो एक शूद्र का रूप लेके आया था, और वो बुल जो था बैल का जो है मार रहा था, उनको पाँव तोड़ रहा था, इमिडिएटली तलवार लेके मारा, परीक्षित वहां पहुंच गए और उनको मारने के लिए तैयार थे। बोले कि हाउ डेयर यू, मेरे राज्य में तुम इस बैल को कैसे मार रहे हो। दैट वाज द स्टैंडर्ड। आजकल तो जो राजा है वो अपने फायदे के लिए बोलता है इधर एक स्लॉटर हाउस खुलाओ, इधर एक प्रोस्टिट्यूशन ब्रोथल खुलवा दो, इधर एक बार खुलवा दो, इधर ये करवा दो। बट दिस इज ऑल प्लेसेस ऑफ पाप, सिंपल जो कर्म है उनके। तो यू कैन जस्ट इमेजिन 5,000 वर्ष तक द किंग हिमसेल्फ यूज्ड टू कम एंड डिफेंड कि ये तुम एक बैल को भी नहीं मार सकते तुम यहाँ पे। It was so मतलब स्ट्रांग हुआ करता था हमारा धर्म। और ये सब रूपा जी बोलते हैं कि जो स्लॉटर हाउसेस, ब्रोथेल, लिकर हाउस, ये सब जो ज़्यादा इतना बढ़ रहा है उसके कारण पाप बढ़ रहा है, और उसके कारण जो है धर्म नीचे जा रहा है और अधर्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो दैट इज वन थिंग। और प्रभुपाद जी फिर इसको कनेक्ट करते हैं कि बोलते हैं कि जैसे बहुत से लोग नॉनवेज खाने वाले ये आर्ग्यू करते हैं मैंने थोड़ी मारा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो कतई नहीं मारा है, मैं तो खाली इसको खा रहा हूँ, मैंने इसको पकाया भी नहीं है। तो उनको लगता है कि पकाना भी जो है मतलब समटाइम्स
इट इज़ वेरी ना, एक पेन होता है उसको पकाने में भी। तो बोलते मैंने पकाया भी नहीं, इसके लोग पकाते भी नहीं, बहुत से लोग सीधा होटल में जाके खाते हैं नॉनवेज। मुझे याद है मैंने एक बहुत टाइम पहले एक वीडियो देखा था, एंड उसमें लोगों का फीलिंग समझ में आता है। सब नॉनवेज खाने वाले थे, तो एक जैसे है ना फन वीडियो होता है वैसे था। तो उसमें वो व्यक्ति क्या करता है, छोटा सा एक जो पिगलेट होता है, एकदम छोटा सा बच्चा, वो एकदम ऐसा ऐसा फ्रेश दिखाता है वो, और उसने ऐसे दिखाया, एक काउंटर खोला है, एक छोटा सा मशीन है उसके पास, और वो क्या करता है कि आपको नॉनवेज खाना, वो आके बोलते हैं नॉनवेज खाना, बोलता है ठीक है मैं अभी आपको फ्रेश देता हूँ, वो दिखाता है पिगलेट दिखाता है, बोलता है ये आपको चलेगा, बोलता है हाँ चलेगा करके, और उसको तुरंत पकड़ के उसको उस मशीन में डाल देता है। एक्चुअली इसको जस्ट फॉर फन, तो उसमें जो है वो वहाँ से पिगलेट वो नीचे बॉक्स में छुप जाता है, और दूसरी तरफ से जो मशीन से निकला हुआ जो मिंस रहता है, मिंस मीट, वो निकलता है। तो वो देख के पीपल, उनका जो रिएक्शन था, इट वाज रियली वर्थ, मतलब दे वर सो मच, मतलब इतना उनको गुस्सा है। एक जन तो उसको मारने लगा, बोला क्यों मार तू इसको डाल रहा है। तो मतलब पीपल वांट टू ईट, बट एट द हार्ट दे आर लिटिल कंपैशनेट कि ये हमारे सामने इसको मत मारो, एंड दैट्स व्हाई पीपल गो आउट फॉर ईटिंग इट। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि अ, यहाँ पे प्रभुपाद जी जो खाने वाला है उसको सबसे लास्ट में गिन रहे हैं, इज द लास्ट। तो फर्स्ट कौन है, पहले तो जो परमिशन दे रहा है। तो इवन वी कैन से कि जो भी अथॉरिटी इसका परमिशन दे रही है, साइन कर रही है कि भाई चलो ठीक है छोड़ रहा उसको, ही इज क्रिमिनल। फिर जो मारता है, स्लॉटर, ही ही हु किल्स द एनिमल, और उसके बाद देन बोलता है ही हु सेल्स, वो बोलते हैं जो उसको बेचता है। तो हमने देखा परमिशन देने वाला, उसको मारने वाला, उसको बेचने वाला, देन ही हु कुक्स। तो मतलब आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन बहुत साल पहले मैं किसी फैमिली के घर में गया था, हम लोग एक दामोदर प्रोग्राम था। तो मतलब माता जी धीरे धीरे कर रही थी, आई थिंक सूरत माधव भी था, हम लोग गए थे उनके घर पे। मेरे को याद नहीं आ रहा है कोई मतलब जस्ट नए थे हम लोगों ने उनको कनेक्ट किया था। तो माता जी बोल रही थी कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है, तो हमने उनको बोला था माता जी आप कुछ बनाना मत हमारे लिए, हम लोग खाली फ्रूट्स ला के दे देना। तो एक्चुअली वो जो थी वो बोलती मैं नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरा हस्बैंड नॉनवेज खाता है तो मुझे वो बनाना पड़ता है। तो उसको ये लग रहा था कि मैं तो खाती नहीं हूँ तो मैं सेफ हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद उनको भी गिन रहे हैं कि जो उसको पकाते हैं, वो कुक, तो ही इज ऑल्सो मतलब उतना ही पनिशमेंट मिलना चाहिए, पनिशेबल है। फिर नेक्स्ट ही हु एडमिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है जो बोलते हैं ना होटल में हम लोग तो नहीं खाते, हम लोग पकाते नहीं, हम लोग तो खाली उसको परोस रहे हैं, तो वो भी उतना ही पनिशेबल है। एंड एट लास्ट, तो लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते एट लास्ट ही हु ईट सच कुक्ड एनिमल फूड आर ऑल मर्डर। तो ये सब जो है उस मर्डर में इन्वॉल्व है, वो एक प्राणी के इन्वॉल्व है, और ऑल ऑफ देम आर लायबल टू बी पनिश्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर। सभी को जो है पनिशमेंट मिलने के योग्य हैं, इनको ये पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये एक था। तो वी कैन, जब हम लोग जैसे जाते हैं तो कोई बोलता है कि हम लोग तो जस्ट होटल में जाके खा रहे हैं, तो वी कैन कन्विंस देम, शास्त्रों में लिखा है कि साइन करने वाला, ऑथराइज करने वाला, तो मारने वाला, उसको बेचने वाला, उसको पकाने वाला, खाने वाला, सभी दे आर ऑल सेम, मतलब उनको उतना ही दंड मिलेगा जो जो है किसी मारने वाले को मिलता है। तो दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज मेकिंग क्लियर। एंड फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो प्रोसीजर है जो मृत्यु दंड का, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। इसके लिए सॉरी, प्रोसीजर ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, ये जो है ना, कि एनिमल सेक्रीफाइस मतलब ये स्लॉटर हाउसेस नहीं खुलने चाहिए, प्रभुपाद बोलते हैं। इसके लिए ये जो है हमारे वेदों में थोड़ा सा छूट दिया है कि आप जो है ये यज्ञ करो,
उसको उसकी बलि चढ़ाओ और उसके बाद में अगर भक्षण करना है तो कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो कहते हैं ये जो यज्ञ है ये दोनों के लिए फायदेमंद है। बोलते हैं, एक जिसकी बलि चढ़ रही है जो प्राणी है वो, और दूसरा उसको खाने वाला। तो वो कैसे बोलते हैं कि जो प्राणी है उसका जब बलि चढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ही इज प्रमोटेड हायर। वो जिस भी योनि में है उससे वो हायर योनि में जाएगा, उसका प्रमोशन होता है। और दूसरा जो एनिमल ईटर है, जो मांस खाने वाला है, वो एक बहुत ही ग्रॉस यानी बहुत ही एकदम निचला स्तर का जो पाप है वो करने से बच जाता है। मतलब अ, ये नहीं कह रहे हैं कि वो पाप नहीं है, इसका मतलब ये है कि वैदिक तरीके से खाना भी पाप है और ऐसे भी खाना पाप है। बट जो वैदिक तरीके से थोड़ा सा जो मतलब जो पनिशमेंट 100% है वो थोड़ा सा 10%, 15%, 25% जो भी वट एवर इट इज वो कम हो जाता है। तो दैट इज एटलीस्ट सम छूट दिया हुआ है कि ठीक है तुम करना है। फाइनली वो उनको रिजल्ट तो मिलेगा ही, उनको पाप तो लगेगा ही, बट जो पनिशमेंट है दैट इज रिड्यूस्ड अगर दे डू इट एज पर। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इवन जो मुस्लिम्स है, इस्लाम है, उसमें वो बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ हलाल खाते हैं। तो ये जो एक मेंटेलिटी है कि हमको तरीके से खाना है, वैदिक। तो वैदिक तरीका ये है कि आप यज्ञ करो, ऐसे करो, एक प्रोसीजर में जाओ एंड देन यू कैन ईट। तो ये है। और फिर प्रभुपा जी, हाँ जैसे प्रभुपा जी बोले दोनों का फायदा है कि एनिमल का भी फायदा है। और हम लोग देखते हैं प्रभुपा जी कई बार बोलते हैं कि जब किसी की बलि चढ़ती है तो प्रभुपा जी बोलते थे कि ये उस प्राणी को जो है, या सॉरी उस जीव को जो है तुरंत नया देह मिल जाता था। तो प्रभुपा जी ये भी कहते हैं कि खास करके ये जब बलि चढ़ाने वाला जो यज्ञ में होता था, ये कोई एकदम ऐसा मतलब फ्रेश नहीं, कोई ऑलमोस्ट मतलब अभी बस इसके कुछ ही दिन बचे हैं, मरने वाला है, बीमार है, या बुढ़ापा है, तो ऐसा प्राणी ऐसा कोई ढूंढते थे। और जैसे उसकी बलि चढ़ा रहे तुरंत उसको नया देह मिल जाएगा। ऐसा हो जाता तो समझ जाते हैं हाँ ये जो है यज्ञ अपना सफल हो गया और हमने सही तरीके से किया। तो दैट इज वन पॉइंट आई वांटेड टू एड। और फिर प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ऑलरेडी हमारा इतना सिंपल है, इसमें मतलब दुखालय मशाश्वतम इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन ये स्लॉटर हाउसेस का परमिशन देने से, इसको एनकरेज करने से, बाय एनकरेजिंग एनिमल स्लॉटर द होल एटमॉस्फेयर बिकम्स पोल्यूटेड मोर एंड मोर बाय वॉर, पेस्टिलेंस, famine एंड मेनी अनवांटेड कैलेमिटीज। तो ये स्लॉटर हाउस को एनकरेज करने से क्या होता है, हमारा और जो है दूषित हो रहा है हमारा। जैसे वॉर वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, पेस्टिलेंस यानी जैसे प्लेग और जो ये सब बीमारियाँ ये सब बढ़ती हैं। फिर फैमिन यानी सूखा, ये सब। और दूसरा जो बाढ़, सुनामी, ये सब जो है, तो ये जहाँ पे ज़्यादा ये सिंपल यानी पापमय कृत्य जहाँ पे होता है वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा होती थी, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे। तो एज ए वैष्णव व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस श्लोका कि ये जो है मतलब दंड है उसको दिया गया है उसको, और उसको ये सजा मिलनी चाहिए। और तो हमने सेकंड अध्याय में हमने देखा था कि आतताई जो है इज सपोज टू बी किल। तो उन्होंने जो भगवान कृष्ण ने उसको अर्जुन से कहा था कि तुम इसका वध कर सकते हो क्योंकि ये आतताई है और ये आतताई। लेकिन एज ए डिवोटी अर्जुना भी जो था ही वाज गोइंग अबाउट दैट चैप्टर, ही वाज सेइंग वी आर वैष्णव, we cannot kill, but he has his own reason. So as a Vaishnava, you should also be very compassionate to everybody, not only to the animals, but to our जितने भी जीव हैं, जितने भी हमारे साथ वाले हैं, चाहे वो डिवोटी हो नहीं हो, एवरीबडी वी हैव टू बी कंपैशनेट। और सभी से हम लोग को अच्छा बर्ताव रखना चाहिए। कलयुग है, दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे, बट वी एज ए वैष्णव हम लोगों को ये प्रयास करना है कि हम जो है अपना अच्छा बर्ताव रखें सभी से। और
जो है ऐसे जब हमारा ये एटीट्यूड रहेगा देन ओनली लॉर्ड विल बी वेरी हैप्पी विद अस और हम लोग को भक्ति में अच्छा आगे पुश मिलेगा जाने के लिए। तो भक्ति में हम लोगों को रहने के लिए सभी के प्रति जो है जैसे हमने देखा था वैष्णव क्वालिटी जो 26 वैष्णव क्वालिटीज है उसमें से एक ये भी है दया, कंपैशन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो वो हम लोगों को इसमें से इस श्लोक में से सीखने मिलता है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, आई एम श्योर आपका टॉपिक ऐसा है, कुछ प्रश्न होंगे तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे और विल टेक कमेंट्स एंड क्वेश्चन। हरे कृष्ण। मंत्रार्थ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, एक डाउट ये था प्रभु, कल हम लोग का एक कैथलिक से बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे मतलब हम लोग वही मतलब ये जीव हत्या के बारे में, बिकॉज यहाँ पे प्रभु जी जैसे कि लोग मतलब यही मतलब इसके ऊपर ही डिपेंड है वो लोग, पूरा लाइफ मतलब जीव हत्या के ऊपर ही डिपेंड है। तो उनको उनसे ऐसा बात हुआ कि मतलब हम लोग ने बाइबल में तो ऐसा लिखा नहीं है, तो मतलब ऐसा सब जीव हत्या करके आपको खाना, इवन दो आप ऐसा कोई काट के आप इवन चर्च में भी नहीं लेके जा सकते। तो वो कैथलिक ऐसा बोल रहे थे कि हमने मतलब बाइबल में एक फोटो है, इसमें लॉर्ड यीशु मतलब यीशु जो है वो स्वयं सबको मच्छी मतलब फिश बांट रहे हैं, ऐसा उसमें फोटो है प्रभु जी। तो हाउ वी कैन मतलब हम किस तरह इसको अंडरस्टैंड करें, मतलब हाउ मतलब जीसस इससे क्या बताना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा गुरु, एक्चुअली मुझे उनका जो पास टाइम था जीसस का, इसके बारे में मुझे इतना ये नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मली मैंने यही सुना है कि जब भी वेजिटेरियनिज्म का बात होता है तो क्रिश्चियंस लोग इसी पास टाइम को बताते हैं कि जीसस ने तो फिश बांटा था तो वाई वी शुडंट ईट। बट एक्चुअली देखें मैंने कुछ अपने वैष्णव से बात किया तो वो बोलते हैं कि इवन क्रिश्चियनिटी में भी वेजिटेरियनिज्म है, उसमें भी नॉनवेज नहीं है। और उन्होंने कुछ बताया था इस फिश के फास्ट टाइम के बारे में, मुझे याद नहीं इतना, बट व्हाट विल ट्राई टू डिग इनटू इट, उसमें से थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे कि क्यों और वो लॉर्ड जीसस इसमें से क्या मैसेज देना चाहते हैं। बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, जैसे हम लोग अगर चाहे इस्लाम देखें या क्रिश्चियनिटी देखें तो इस्लाम अगर देखें तो ये मतलब कहाँ पे आया था, जहाँ पे पूरा डेजर्ट है वहाँ पे देयर वाज नो वेजिटेशन, मतलब एक भी वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं उगता था। हम लोग दुबई आज देख रहे हैं इतना ग्रीन, बट ओरिजिनल आप दुबई का फोटो देखेंगे तो पूरा सब जगह पे डेजर्ट डेजर्ट है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा पूरा आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा, जैसे वेदों में छूट दिया है वैसे इनको इनके धर्म में थोड़ा सा छूट दिया है कि आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वेजिटेशन पॉसिबल है, अगर इफ यू कैन मतलब चांस है वहाँ पे मिलने का, देन यू शुड नॉट गो फॉर दैट ऑप्शन फॉर ईटिंग मीट। या विल ट्राई टू फाइंड प्रभु, मुझे इतना आइडिया नहीं, अगर ग्रुप में कोई है कि somebody knows तो प्लीज शेयर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आज का मतलब बहुत ही अच्छा मतलब कोइंसिडेंस, आज क्रिसमस है, एक फेस्टिवल उनका, जिसमें इतना सारा आज मतलब मीट मीट ईटिंग का ये होता है, मतलब उनका फेस्टिवल ही। और टुडे वी आर टेकिंग दिस श्लोका, सो एक अच्छा कोइंसिडेंस। तो एक्चुअली प्रभुपाद भी बोलते हैं कि अगर इफ यू कैनॉट गिव लाइफ देन वी हैव नो राइट टू टेक लाइफ ऑल्सो, मतलब अगर हम किसी को जीव नहीं दे मतलब प्राण नहीं दे सकते तो हमको कोई अधिकार नहीं कि हम किसी का प्राण छीने। एंड एक कोट भी है कि अगर स्लॉटर हाउस अगर ग्लास डोर के होते
तो सब लोग मतलब मीट ईटिंग, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया प्रभु। अगर हम लोग देखेंगे हमारे सामने कैसे मारते हैं उनको, तो डेफिनेटली वो विल नॉट ईट। मतलब बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्यों मीट छोड़ा, मतलब उन्होंने जब देखा कैसे उनको हत्या की जाती है, वो देख के बहुत लोगों ने मतलब ऐसा उसकी वजह से भी मीट ईटिंग छोड़ा है। और और प्रभु मतलब ये स्टोरी मुझे सही पता नहीं, लेकिन ऐसा सुना है कि वो जो बकरी का जो सेक्रीफाइस करते ये मुस्लिम लोग, तो एक्चुअली ऐसा कुछ था कि एक डिवोटी को मतलब मतलब उसके बच्चे का बलि देने के लिए कहा था, और उसने मतलब मतलब इन डिवोशन वो जब देने गया तो लॉर्ड वाज प्लीज्ड, मतलब इसने मतलब कहने पे ही रेडी टू गिव सेक्रीफाइस ऑफ हिज सन। तो उन्होंने लास्ट मोमेंट में वो उसका बच्चे को रिप्लेस किया बकरी के से, मतलब व्हेन ही वेंट टू बीहेड, मतलब मारने गया अपने बच्चे को मतलब एज अ बलि भगवान के लिए। तो भगवान ने वो डिवोशन उसका देख के लास्ट मोमेंट में जैसे वो काटने वाला था, तो वो बकरी से उसको चेंज किया। तो दैट वाज एक्चुअली टेस्ट, मतलब वो एक परीक्षा जिसमें वो पास हुए थे ऐसा। तो फिर इन्होंने उसको प्रथा ही बनाई वो बकरीद के टाइम बकरी का बलि देना। तो ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मतलब उन्होंने एक कस्टम बनाया, लेकिन उसका रीजन या फिर उसका पीछे जो ये है वो अलग ही, मतलब जिनको पता नहीं है ऐसा। हरे कृष्णा ब्रो, थैंक यू ब्रो फॉर द वंडरफुल क्लास। तो हमको अगर किसी को कांट गिव लाइफ, तो वी डोंट हैव द राइट आल्सो टू टेक लाइफ। थैंक यू ब्रो, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Suraj Madhav, that's why I always request you to comment something because बहुत ही अच्छा कुछ connection. You have totally different angle for every thing. तो थैंक यू सूरज माधव। एक तो कि आज क्रिसमस है और क्रिसमस के मौके पे आज इतना अच्छा टॉपिक निकला है, एंड वो जो स्टोरी है अबाउट इस्लाम, एक्चुअली दैट इज प्री इस्लामिक स्टोरी, इस्लाम के पहले है। जस्ट मैं वापस उसको मतलब बता देता हूँ। तो एक्चुअली इट वॉज इब्राहिम, यानी इन लोग मुस्लिम में उसको इब्राहिम बोलते हैं, और ज्यूज और क्रिश्चियंस उनको इब्राहिम करके बुलाते हैं। तो इब्राहिम जो था उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। मतलब अपने को उसका कितना मतलब भक्ति था वो यहाँ पे दिखेगा। तो उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था, उसकी ऑलरेडी एक वाइफ थी, शी वॉज ए ज्यू। एक्चुअली दोनों ओरिजिनल जो थे ज्यू थे, उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था उनको, और काफ़ी टाइम हो गया, एंड ऑलमोस्ट दे आर गेटिंग ओल्ड। एंड वो बहुत अच्छे प्रॉफिट थे, वो तो बहुत अच्छे मतलब भक्त थे, तो इसलिए लोग उनको मानते हैं। एंड मतलब उनका मतलब ऐसा हो कि बूढ़े हो गए फिर भी बच्चा नहीं होगा। तो तब फिर आई थिंक आई डोंट नो मतलब क्या होता है कि ही मैरिज वन मोर, नॉट मैरिज, बट उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि तुम्हारी जो ये मेड है, शी वॉज इजिप्शियन, तो बोलते हैं उससे तुम ये बच्चा जो है तुम कर लो तो तुमको बच्चा हो जाएगा। एंड ऑन दैट इंस्ट्रक्शन शायद भगवान से मिलता है या आई डोंट रिकलेक्ट एग्जैक्टली। तो वो जो इजिप्शियन जो थी उस मतलब उसके द्वारा जो है पुत्र प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और ऐसा होता है कि उसको पुत्र होता है, मतलब समझता है कि ये प्रेग्नेंट है। जैसे समझते हैं ये प्रेग्नेंट है, तो पता चलता है जो उनकी ओरिजिनल वाइफ थी सरहा, वो भी प्रेग्नेंट है। तो मतलब खुश हो जाते हैं कि ये मतलब अभी तक एक भी बच्चा नहीं था, अभी दो दो हो गए थे। तो ये जो सरहा है उसका जो वंशज है, दैट आर ज्यू। और वो जो इजिप्शियन जो मेड थी उनकी, तो उसका नाम नहीं याद आया मेरे को, उसका जो लीनेज है वो है मुस्लिम। तो यहाँ पे उनका बंटवारा हुआ था। और जब मतलब उन्होंने मतलब क्या करना है, तो मतलब जो उनको मतलब ये मिला भगवान से कि मुझे एक सेक्रीफाइस चाहिए। तो बोले कि मैं क्या करूँ, बोले तो मुझे सेक्रीफाइस चाहिए। बोले ठीक है, बोला क्या क्या सेक्रीफाइस करूँ, क्या किसका बलि चढ़ाऊँ। तो बोलते हैं मुझे तेरे बच्चे का बलि चाहिए। तो बहुत मतलब दुख होते हैं, ये भगवान मेरे से क्या मांग रहा है, ये मैं एक तो अभी तक बच्चा हुआ नहीं, बूढ़े होने के बाद अब ये जब बच्चा हुआ है तो भगवान वापिस उसको ले रहा है। बोला कि भाई इसका बच्चे का ही बलि चढ़ा हुआ। तो इट वेरी सैड हिज हार्ट कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट स्टिल ही हैड फुल फेथ। भगवान ने बोला है तो मुझे करना है।
चाहे वो मेरे बच्चे का बलि देना हो, तो एक दिन वो इस तरह से बोलते हैं कि मैं इसको घुमाने ले जा रहा हूँ अपने बच्चे को, छोटा बच्चा रहता है, आई थिंक 4 years old या 5 years old, ऐसा कुछ है, 5-7 साल का ऐसा कुछ है, उसको लेके जाते हैं और विथ वेरी हेवी हार्ट, वो जस्ट मतलब जो था उसको मारने वाले थे, ही इज गोइंग टू बी हेड, उससे नहीं, भगवान स्टिल टेस्ट, जैसे प्रहलाद महाराज का ना, गिरते 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये कब हिट कर रहा है, मैं इसको टेस्ट करता हूँ करके, और कब इसका भक्ति टूटता है, तो उसका भक्ति टूटा नहीं। ऐसे अब्राहम इज ऑल्सो डेडिकेटेड, तो था कि मुझे इसको बलि चढ़ाना है, भगवान ने बोला तो मुझे करना है वैसा। और जैसे वो काटने वाले थे, भगवान इमीडिएटली उनको रोका, बोला कि आई एम वेरी हैप्पी विद योर डिवोशन, तो प्लीज, बट लेकिन ये इंस्ट्रक्शन है, तुमको काटना है तो इसको तुम बकरे से रिप्लेस करो। तो उन्होंने बच्चे को हटाया, वॉज वेरी हैप्पी, और बकरे, बट दैट इंसिडेंट हैज बीन टेकन, जैसे सूरज नागर प्रभु ने बताया कि उसको एक प्रथा बना लिया कि बकरा काटना है और खाना है, तो दैट इज ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, बट दैट वाज एक्चुअली ए टेस्ट ऑफ फेथ। और इसीलिए जो दोनों मुस्लिम और क्रिश्चियन और ज्यूज तीनों जो है इनको मानते हैं अपना प्रोफेट अब्राहम, एंड ही वाज अ वेरी नाइस डिवोटी। हरे कृष्णा। थैंक यू सूरज नागर प्रभु फॉर connecting this story. Hare Krishna. Yeah, Thank yeah, Suraj Nava, Hare Krishna. उद्धव प्रेष प्रभु ने हाथ रेज किया था प्रभु। हाँ, उसमें दिखता नहीं है, या उद्धव प्रेष प्रभु जी, प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, मेरे से पहले में सत्यराज प्रभु ने शायद हाथ ऊपर किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, आफ्टर यू, मैंने आपकी बात किया, सॉरी। नहीं, आपने पहले किया था, मैंने देखा था। प्लीज गो अहेड। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। तो जिस गोपी प्रभु जिस बोल रहे थे ये बलि के बारे में, तो मुझे याद आ गया, वाई में एक जगह है, एक देवी है उधर, अभी भी देवी के इधर वो बकरा या किसका भी बलि चढ़ता है, अभी भी, आज भी। तो एक्चुअली वो अलाउड नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि देवी ने कहा है, बट लेकिन स्क्रिप्चर में ऐसा कभी किधर कहा नहीं कि वो बलि देना चाहिए। तो जस्ट बिकॉज ऑफ अभी जैसे शिला प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छे से पॉइंट बता रहे कि अगर हम लोग किसको जान नहीं दे सकते, मीन्स किसको हम लोग ये नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको मारने का अपने को हक नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग बिलीफ मीन्स वो लोग ने जो स्क्रिप्चर्स है वो खुद ये किया है, चेंजेस किए है, और अभी भी चालू है। हम लोग देख सकते कि इधर मीन्स कितने कत्ल खाने वगैरह कितना बढ़ रहा है, फिश मार्केट एंड ऑल कितना बढ़ रहा है, भाजी मार्केट छोटा हो रहा है, फिश मार्केट बड़ा हो रहा है, बिकॉज दिस इज कलयुग। तो ये सब होता ही रहेगा। और जैसे शिला प्रभुपाद जी ने भी कहा था कि आई थिंक सो प्रभु जी ने गोपी में प्रभु जी ने बताया था एक बार कि शिला प्रभुपाद ने भी बोला था कि अगर आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन एकदम रिमोट प्लेस, उधर बर्फ बहुत ज्यादा है, उधर कुछ खाने के लिए नहीं है, सो दैट टाइम लाइक कुछ भी नहीं रहेगा, देन आप खा के लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो मतलब शिला प्रभुपाद जी बताना चाहते कि डिवोटी जो है वो हम पत्रम पुष्पम फलम, तो है, हम लोग को पता है कि भगवान ने क्या बोला है, तो वी शुड एक्सेप्ट ओनली दोस थिंग्स। तो ये पॉइंट मुझे ऐड करना था। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। और पहले ऐसा भी था कि मतलब अगर किसको बलि देते थे तो उनके मंत्र में इतना पावर था कि उसको ही गॉट लिबरेटेड, मतलब उनको ह्यूमन बर्थ मिलता था। लेकिन अभी कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है, दे आर कटिंग फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। हरे कृष्णा धन्यवाद। Yeah, thank you, Sataraj Prabhu. Yeah, Uddhav Presh Prabhu ji. Hare Krishna. दिस इज अ लॉन्ग टॉपिक, वंडरफुल टॉपिक, जितनी सारी बातें बताई। तो जैसे कि गोपी मनोहर प्रभु ही रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जहाँ पर जो चीज नहीं अवेलेबल है, वहाँ पर वेजिटेशन अवेलेबल नहीं है, तो उनको लिबर्टी दी गई है कि दे कैन गो अहेड विथ ईटिंग द फ्लैश।
तो ऐसे ही अपने शास्त्रों के अंदर भी है। हम लोग देखते हैं अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ। तो ये यज्ञ क्यों थे भाई? घोड़े की बलि चढ़ानी है, उसके बाद में गाय या बैल की जो है बलि चढ़ानी है। तो ये जो थे मतलब सेक्रीफाइसेस। तो जैसे अभी सत्यराज प्रभु ने बताया कि in at those times they had so much of power in their mantras that जैसे ही उनकी बलि चढ़ती थी तो that being, the living being at that time, he would transmigrate to an on the higher realm। वो आगे जाके उनकी उस योनि से निकल के आगे वाली योनि के अंदर तुरंत जाएंगे, उनको कोई जो है तकलीफ नहीं होगी। तो और उसके साथ में अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो अभी हमने देखा था ऐसी अश्वत्थामा की जो अभी बात चल रही थी। तो विद द जस्ट फॉर द बाय चैंटिंग द मंत्रास ही इज मेकिंग अ ब्रह्मास्त्र व्हिच इज मोर पावरफुल देन अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इसके साथ हम सब सोच सकते हैं कि इतनी शक्ति थी मंत्रों के अंदर, और इतनी शक्ति आज भी हमारी वाणी में है। ओनली शुद्धता ही नहीं है, इसके लिए हमारी वाणी में इतनी ताकत नहीं है। नहीं तो आज की तारीख के अंदर भी जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, किसी ने उनको प्रश्न पूछा था कि जो हमारी पॉइंटिंग फिंगर है उसके ऊपर हम लोग जपा क्यों नहीं करते, व्हाई वी डू ऑन द मिडिल फिंगर और ऑन द रिंग फिंगर। तो ये जो पॉइंटिंग फिंगर है उसके ऊपर हम लोग जपा क्यों नहीं करते हैं, द वे द मुस्लिम्स डू बट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, बट दे आर चैंटिंग ऑन द पॉइंटिंग फिंगर। तो तभी गुरु महाराज ने उनका जवाब दिया था कि पॉइंटिंग फिंगर के ऊपर जो अगर आप जपा करते हो दैट इज ओनली यूज्ड फॉर कर्सिंग समबडी। तो ब्राह्मणास इन दोज डेज व्हेन दे यूज्ड टू चैंट ऑन रुद्राक्ष और ऑन एनी ऑफ द जपा मालास, दे यूज्ड टू chant the mantra on the pointing finger and then curse somebody if they wanted to curse। तो this is one of the mantras की शक्ति के बारे में बात हो गया। दूसरा जैसे बताया है कि भाई जो क्रिश्चियंस का भी फिश का बताया, जो सर्वोदय गिरधारी प्रभु ने बहुत अच्छा टॉपिक इस पे उठाया। तो उसके अंदर बताया गया है कि एट दैट टाइम ऑल्सो इट इज मेंट कि जब भी वहां पर वो एक ऐसी सिचुएशन आई थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई हैव हर्ड दिस, कि ऐसी सिचुएशन आई थी कि वहां हर जगह सिर्फ पानी पानी था, कोई दूसरा कुछ कुछ जो काइंड ऑफ प्रलय आ गया था, कुछ था ही नहीं जो जिसके ऊपर जो जीव है, जो मनुष्य जीव है, वो उसके ऊपर जो आधारित होकर अपने आप को बचा सके। तब वहां पर जो जीसस ने परमिशन दी थी कि यू कैन हैव फिश, दैट इज वन ऑफ द रीजंस। एंड सिमिलरली जो सूरत माता प्रभु ने उठाया एक बात बताई, तो उसके अंदर बताया गया है कि इवन in the Muslims, I have more than 5 or 7 pages of sacrifices. How do the Muslims they do the sacrifices and what are the instructions they have to follow? तो पहला जो अगर जो इसकी बकरी की जो sacrifice करता है, even on बकरी ईद और whatever, he has to first take, he should be 5 टाइम का नमाजी होना चाहिए और एक भी नमाज उसने चूका नहीं होना चाहिए जिंदगी के अंदर। That is first criteria. Second thing is that he has to take the sacrificial goat and he has to, that goat should be clean, उसको कोई तकलीफ नहीं, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, and वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके इमीडिएटली जैसे उसके बच्चे नहीं हो उसके आसपास में और उसको ले जाना चाहिए। दैट्स सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड थिंग इज दैट जब उसकी वो बलि करता है, जो उसको उसकी बलि चढ़ाता है, उसको पहले जो जिस डायरेक्शन में इनका काबा है उस डायरेक्शन में उसको बकरी का फेस होना चाहिए। एंड दिस गाय शुड सी, जब उसकी बकरी का गला काटते हैं तो वहां हम लोग झटके का मांस नहीं खाते हैं, ये सबको पता है। तो दे व्हाट दे डू, दे जस्ट स्लिट द थ्रोट ऑफ द गोट। तो जो बकरे का या बकरी का जो गला काटते हैं, तो जो वो बकरा या बकरी जो भी है वो उसको जो काटता है उसको उसकी आंखों में देखना है कंटिन्यूअस, जब तक उसका टोटली बॉडी ठंडा नहीं हो जाता तब तक वो आदमी जो बलि चढ़ाने वाला है उस बकरे की आंखों में देखेगा कंटिन्यूअस। एंड दैट्स अ क्राइटेरिया, ही हैज टू सी इट। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो जो बलि को बलि नहीं मानते हैं, वो उसको जो है बोलते कि भाई ये जो है हलाल नहीं है। तो जो काटने वाला है, ही हैज टू सी इन द आईज ऑफ दैट सैक्रिफिशियल गोट एंड टिल द गोट डाइज, उसका पूरा प्राण नहीं निकल जाता तब तक देखना है। और अगर ये सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आप बताइए कि कौन ऐसा होगा जो ऐसा जो मंजर, ऐसा जो सिचुएशन, ऐसी जो है दृश्य देखकर जो ऐसे काम करेगा। आज जो ये कर रहे हैं बकरे की बलि या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां तो जो है
नौकर लोग या ऐसे कसाई लोग को लेके आते हैं, वो एक कसाई कर रहा है और बाकी जो है खाने वाले तो सब दूसरे रहते हैं, क्योंकि वो अगर उसको देखेंगे तो कभी खाएंगे नहीं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस दे हैड सेंट। एंड सेक्रीफाइस का जो था, वो जो मोहम्मद की बात आई थी, तो उस समय पर उनको भगवान ने कहा था कि भाई तुम जो तुमसे सबसे प्रिय चीज हो उसकी बलि चढ़ाओ। तो तब उसने कहा था कि सबसे प्रिय चीज जो है मेरा बेटा है, तो मैं इसकी बलि चढ़ाता हूँ। तो उसको ले गए वहां पर बलि चढ़ाने गए, तो वहां पर वो बच्चा जो है वहां से उसके साथ में स्वाइप होगा उसके बकरे के साथ में। तो आज के मतलब युग के अंदर अगर जितने भी ये मुस्लिम्स हैं उनको अगर ये कहें कि भाई सबसे प्रिय वस्तु जो तुम्हारी है, तुम्हारी बीवी है या तुम्हारा बच्चा है, प्रिय है, उसको काटो, तो काटेंगे क्या वो? तो ये एक है। वो टाइम पे द पीपल वर ट्रू ट्रू टू द लॉर्ड, दे न्यू दैट। और हमारे शास्त्रों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे वर्णन आते हैं जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि भगवान ने जो मांगा है तो वो उन्होंने दे दिया है, और जब दिया है तो उससे पहले भगवान ने देखा कि मैं इसकी परीक्षा ले रहा था और वहां पर उन्होंने स्वाइप कर दिया। तो ये जो सब कॉन्टेक्स्ट हैं, इसको समझने की है। इसके ऊपर मेरा एक क्लासमेट था, हिज नेम वाज मैथ्यू थॉमस, एक क्रिश्चियन था, एंड वी ही यूज्ड टू स्टे इन कांदिवली विलेज। तो कांदिवली विलेज एक ऐसी जगह है जहां पर आपको फिश अबंडेंट मिलती है, क्योंकि इट इज क्लोज टू द शोर, शोर के पास में है। तो वहां से जो भी मछेरे हैं वहां पे फ्रेश ताजी मछली लेके आते हैं, वहां पर बेचते हैं। तो मैथ्यू थॉमस जो है वो, उसकी बहन और उसकी माँ, ये लोग जो है संडे का दिन था या कुछ दिन था, वो लोग वहां पर फिश लेने के लिए गए, बिकॉज दे वर फिश ईटर्स। तो ये इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन बोथ द ब्रदर एंड सिस्टर्स दे हैड accompanied द मदर व्हेन दे वेंट देयर। तो वहां पर जो जो ये माछी मार रहती हैं, जो ये गोली लोग रहते हैं, वो फिश को काट रहे थे, एंड द ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम दैट द फिशेस। वो देखकर उस समय जो मेरा फ्रेंड है मैथ्यू थॉमस, जो मेरा सॉरी क्लासमेट था, उसकी सिस्टर ने उस दिन से जो नॉनवेज बंद कर दिया। और वो तब से कुछ 6 या 7 साल की थी उसके साथ में। तब से उसके दिमाग के अंदर वो इम्प्रेशन बैठ गया कि भाई ये नहीं करना चाहिए। उस लड़की ने उसके बाद में बोलता है मेरी सिस्टर अभी खाती नहीं है, और मैं भी इसके लिए खाता हूँ क्योंकि घर पे बनता है, और मैं अगर देखूं तो मैं खाऊंगा नहीं, उस फिश को तो मैं नहीं खाऊंगा। मगर मेरी सिस्टर ने इसको नॉन वेज को टोटली बंद कर दिया, बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो शी वुड सर्वाइव ऑन दाल, राइस एंड ऑल द वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, बट शी वुड नेवर इवन टच और गो एंड ईट दिस नॉन वेज। तो ये सब जो थे पॉइंट्स के ऊपर रियलाइजेशन आए, वो मैंने बताया। हरे कृष्ण। थैंक यू उद्धव प्रभु, बहुत अच्छा आपने इसको एलेबरेट किया, बहुत सा पॉइंट था। और जैसे भी आपने भी बोला, माता प्रभु ने भी बोला कि स्लॉटर हाउस इतना भयानक है कि अगर कोई देख लेगा उसको वहाँ पे कैसे कत्ल हो रहा है, तो कोई ऐसा खाना नहीं चाहिए कभी भी। तो प्रभुपाद जी जैसे बोलते थे कि अगर स्लॉटर हाउस, आई थिंक प्रभुपाद और आई डोंट रिमेम्बर, बट अगर स्लॉटर हाउस की अगर दीवारें अगर कांच की होती तो ये स्लॉटर हाउस कभी नहीं बनते, कभी नहीं फैलते ये। तो दैट मीन्स कि लोगों के दिल में दया है, लेकिन जस्ट एक वो जीवा की टेस्ट के लिए पीपल आर स्टिल डूइंग सिंपल एक्टिविटी। हरे कृष्णा। थैंक यू उद्धव प्रभु। हरे कृष्णा। और इसके ऊपर एक और भी मतलब जो है विषय, जैसे अपने बता ग्लास के अगर विंडोज हो स्लॉटर हाउस के, तो उसके ऊपर में एक सम डिस्कशंस कुछ हो रहे थे। तो आई एनकाउंटर्ड वन ऑफ द टॉपिक्स ऑन दिस वन बाय सदगुरु। सदगुरु वाज एक्सप्लेनिंग दैट ईच एंड एवरी एनिमल, कोई भी जीव है, जब उस उसको जो है, जैसे से हम भी अब देखते हैं कि यहाँ अपने जो प्रिंसिपल्स के अंदर कि हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे डिफेंड करते हैं, 4 थिंग्स के अंदर वन वी आर डिफेंडिंग। तो डिफेंड करता है, तो उसी तरह अगर एक किसी भी जीव को लेकर आओ और उसको पता चल जाता है कि उसकी अभी जान जाने वाली है, तो उसके बॉडी के अंदर से इतने सारे जो है वो निकलते हैं, मतलब जो उद्गार निकलते हैं। तो दैट गोज इन द बॉडी ऑफ द एनिमल, एंड देन व्हेन यू कट दैट एनिमल, सो ऑल दैट विकार जो है वो आपके अंदर आते हैं जब आप उसको ग्रहण करते हो। तो इसके ऊपर आता है कि जैसे बिल्ली को काटते हैं, when the people who are eating cats, they had to do that in the running water,
क्योंकि जैसे बिल्ली को आप काटोगे तो बिल्ली अपने शरीर के अंदर से इतने जीवाणु छोड़ देती है कि पूरा उसका शरीर जो जहर की तरह हो जाता है। तो उसको काटना है तो एक साथ में एक झटके से काटना है, एंड इट हैज टू बी डन इन वन गो। तो वो पानी के अंदर उसका जो है बहाव के साथ में कट जाएगा, सर कट जाएगा। मगर अगर उसको तुमने धीरे से भी काटा, उसको पता चल गया, तो उसके बॉडी के अंदर से पूरे ऐसे जीवाणु छोड़ देगी, सिर्फ शरीर के अंदर उसके फैल जाएगी, इट विल बी पॉइजन फॉर द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग इट। एंड सेकंड थिंग वाज दैट इफ यू चॉप द हेड ऑफ अ चिकन, तो बोलते जब मुर्गी को एकदम झटके से उसकी गर्दन काटोगे तो उसका शरीर जो है वो तड़पता है, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 राउंड्स ऑफ द फुटबॉल स्टेडियम। जब जब तक वो ठंडा, उसका शरीर ठंडा नहीं होता, तब तक वो 3 राउंड पूरे जो है जो फुटबॉल स्टेडियम की ओर दौड़ सकती है, और उसका बिगर शरीर, बिगर गर्दन के। तो यू नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉमा शी इज गोइंग थ्रू, और इट इज गोइंग थ्रू, और उसको हम लोग खाते हैं। तो यानी हमारे शरीर के अंदर भी कितने विकार आएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सूरज माधव प्रभु, एक मिनट, जस्ट अभी प्रभु ने बिल्ली का बात निकाला तो मुझे बहुत याद है यार, लोग पीपल आर दैट जो मतलब बिल्ली भी खाते हैं, बट एक्चुअली अगर हम अपने इसमें देखें तो बोलते हैं अपने हाथ से गलती से भी अगर कभी बिल्ली मिल गई तो मतलब बहुत सा कुछ प्रायश्चित करना पड़ता है कि मतलब एक सोने की बिल्ली बनवानी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसा सुना है। लेकिन लोग इतने सिंपल हैं कि उसको मार मार के खा रहे हैं। इट इज अ वेरी सैड पार्ट। हरे कृष्णा। यस सूरज बाबा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। एक बार पत्री प्रभु बता रहे थे, मतलब कलयुग मतलब इतना डिग्रेड हो रहा है। मतलब हम लोग अभी इसका बोल रहे थे कि आजकल फीटस जो है, मतलब पीपल टेक डिलाइट इन इवन ईटिंग फीटस, और इतना महंगा बिकता है। तो वी कैन इमेजिन मतलब कितना मतलब इट इज सो डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस। मतलब फीटस भी खाने के लिए, मतलब इन चाइना, जापान। और वो बता रहे थे कि प्रभुपाद की कृपा है, नहीं तो चाइना में जो कुछ भी हिलता है, whatever it moves, it is food। मतलब टेबल कुर्सी छोड़ के वैसा ऐसा इन जोकिंगली बोल रहे थे। सो एनीथिंग दैट शेक्स, मतलब जीव, दैट इज फूड इन चाइना। बट प्रभुपाद की कृपा से वहां पे भी बहुत सारे ऐसे ऐसे भक्त बन रहे हैं। तो बस वो एक ऐड करना था प्रभु की फीटस जैसा चीज भी आजकल लोगों का मतलब एक टेस्टी फूड के इसमें आता है। इन सच मतलब कितना कॉन्शियसनेस नीचे गया है। हरे कृष्ण। थैंक यू सूरज माधव प्रभु। तो 9:55 और 10 बज रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो विल स्टार्ट विद उद्धव प्रेस्ट प्रभु जी। देयर इज नो क्वेश्चन और कमेंट। जय सूरज माधव प्रभु। नहीं सॉरी हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, जय माता जी का। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। जय। प्रभु जी, मुझे एक सवाल था। अभी जैसे उद्धव प्रेस प्रभु जी ने बताया था ना, उस पे ही मैंने एक लाइव अपने सामने देखा था। जब भी हम लोग प्रभु जी यहाँ पे आने से पहले जब हम लोग मुंबई के घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो अभी की बात थी कि एक चिपकली थी हमारे वहां पे। तो वो चिपकली की जैसे हम देखते हैं कि पूंछ है, लंबी होती है कभी, तो उसको हम लोग अपने घर से मीन्स किचन में थी, तो हमने वॉचमैन को बुला के, हम थोड़ा डर गए उससे, तो हमने उसको बुलाया और वो भागी। तो वो जब भागी तो उसकी जो, जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि गर्दन बकरी की कट गई फिर भी वो राउंड लगा सकती थी। तो ये मुझे क्वेश्चन था, शायद मैंने पूछा कि नहीं, मुझे याद नहीं है। तो वो चिपकली जो थी, जो कट गई, आधी उधर थी एक जगह पे और आधी तो उसकी पूंछ हिल रही थी। तो मुझे ये पूछना था कि विदाउट वो धड़ के बिना कैसे वो, मतलब तब तक भी आधे शरीर में भी प्राण रहते हैं क्या? मीन्स हम लोग सोच रहे थे वो एटलीस्ट आधा मिनट तक तो वो उसकी पूंछ भी हिल रही थी, एंड वी वर अमेज्ड टू सी के लाइक ये भगवान का चमत्कार है क्या है, कैसे कि भाई इंसान तो जैसे शिशुपाल का धड़ काट दिया था भगवान ने, तो तब तक भी क्या शरीर में प्राण रहते हैं कि वो हिल सके?
तो वो छिपकली जैसे कट गई थी आधी, तो उसकी पूंछ भी आधा मिनट तक तो वो और हम भी उसको देख के एकदम घबरा गए कि वो खुद कहीं और है, वो दिख नहीं रही थी और उसकी पूंछ हिल रही थी। तो प्रभु जी ऐसा हो सकता है क्या कि विदाउट धड़, विदाउट द मेन हेड एंड ऑल दैट बॉडी, हाफ द बॉडी कैन फंक्शन, या से वो हिल सकता है? ऐसे कैसे प्रभु जी? बहुत अमेजिंग ये भगवान का चमत्कार लग रहा है कि ऐसे कैसे रियल में ऐसा ऐसे हो सकता है। हमने तो देखा अपनी आंखों से, तो एकदम एक इंसान दहल जाता है, डर जाता है, ये क्या है, ये मीन्स ऐसा हो सकता है क्या प्रभु जी? एक्चुअली तुमने देखा है तो ये हो रहा है, मतलब क्योंकि यू ऑलरेडी सीन। और हम लोग इवन ये भी देखें, अपने जो राजपूत लोग थे या मराठा जो वॉरियर्स थे, क्षत्रिय थे, कहते हैं कि इवन उनके सर कट जाने के बाद में भी उनका जो शरीर है वो चलता रहता था। मीन देवर सो मच इनटू दैट, मतलब इनर्शिया मिल जाता है उनको कि जब उनके हाथ जो तलवार जब चल रही है तो उनका सर भी कटने के बाद स्टिल दैट यूज टू गो ऑन। बट गोविंद चरण हैज सम साइंटिफिक connection to that. I will give it to him. हरे कृष्णा। जो प्राण तो निकल जाते हैं अगर किसी का काट दिया, और मतलब वो प्राण निकल जाते हैं, पर क्या रहता है वो नर्वस, मतलब क्या होता है, चैतन्य चरण प्रभु भी बोल रहे थे कि जब जब प्राण, मतलब कैसा है कि सबका नॉर्मल डेथ नहीं होता। अभी जैसे कि बकरी का काट दिया गला, इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस और बहुत इमीडिएटली होता है। तो बॉडी जब इतना जोर से जब निकलता है तो वो बॉडी झेल नहीं पाता कि इतना जोर से उसका सोल निकला है। तो वो बॉडी इतना, मतलब वो प्रोसेस नहीं कर पाता कि प्राण निकल गया। तो वो बॉडी तब तक के लिए, उसका सेंसरी नर्वस सिस्टम है वो वैसा रिएक्ट करता रहता है कि एंड टाइमिंग पे कैसा रिएक्ट कर रहा था वैसा रिएक्ट करता रहता है। प्राण निकल जाते उसके, मतलब उसका मतलब गला काट दिया तो मतलब सारा खून निकल गया बाहर और ही इज डेड। बट जब तक उसका मतलब इतना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी देखते हैं जो मरे हुए लोग भी रहते हैं, मतलब डेड पीपल, एक्चुअली हम इंसानों में भी देखते हैं। तो कभी कभी देखते हैं कि वो मरने के बाद भी उसका एक कौन सा तो उंगली हिल जाता है, वो हो जाता है कि वैसा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी बॉडी है उसके अंदर जो केमिकल्स है वो तो है रहेंगे ना, तो वो उसके हिसाब से वैसा रहता है। तो वो वैसा रहता है, नर्वस सिस्टम मतलब थोड़ा चालू रहता है तभी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस से रहता है तो वो चालू ही रहेगा। तो वो बायोलॉजिकल रिएक्शन है उससे। थैंक यू। हरे कृष्णा गोविंद। तो मतलब ये कहना है कि दिस इज ऑल सम ना, एक जैसा जो भगवान ने जो सिस्टम बनाया हमारा, तो वो जो एक इम्पल्स है, वो इम्पल्स की वजह से वी कैन सी उसकी पूंछ हिल रही है, या तो जो वॉरियर्स है वो फाइट, मतलब क्योंकि उनको मतलब दे डोंट इवन रियलाइज कि उनका सर कट गया है, तो दे आर डेड। बट बिकॉज ऑफ दैट इनर्शिया वॉट एवर दे आर डूइंग, दैट इम्पल्स, जैसे साइंटिफिकली दैट इम्पल्स दे कीप ऑन गोइंग, but the body, मतलब the soul has already left the body, but just because of that chemical reactions, that sensory जो perception जो भी है, that continues for our, जैसे पंखे का बोले ना हम लोग, जैसे पंखा का बटन बंद कर देते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं वो ब्रेक मार के करके रुक नहीं जाता। वो जो एक उसका जो इनर्शिया गेन किया है वो चलते रहता है, एंड उसका जो है मतलब पावर कट हो गया, बट दैट फैन आफ्टर अ व्हाइल इट स्टॉप। कैन से सेम थिंग इज designed for our body also. Hare Krishna. Yes, Uddhav Prashth. प्रभु हरे पर कृष्ण आत्मा प्रभु। तो एक ही है ना? Yes, Jaya. नो आई एम सॉरी प्रभु, एक्चुअली आई वाज जस्ट सेइंग कि आत्मा तो एक ही है ना, जब कटते हैं तो दो हिस्से हो जाते, तो आत्मा तो एक ही है ना, तो जो द पोर्शन व्हिच इज शेकिंग, जो हिल रहे हैं, आत्मा उसमें रह जाती है, बिकॉज वी हैव लर्न दैट इन भगवत गीता दैट सोल कैन नॉट बी कट। आत्मा तो एक ही रहती है ना प्रभु जी? या वो तो दिखती भी नहीं है, तो उसको काटेंगे कैसे? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, तो जब दिखता ही नहीं है मतलब है ना, तो हाउ कैन यू कट इट? आत्मा का उससे कोई है नहीं, आत्मा तो निकल चुकी है बॉडी से, तो जस्ट एक मटेरियल बॉडी है, एंड उसमें जो जो भी इम्पल्स है, जो सेंसरी इम्पल्सेस है, बिकॉज ऑफ दैट कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि वो 4 घंटे चलता रहेगा, तो जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, और जैसे भगवान ने जिसका शरीर बनाया वो हिसाब से वो चलता रहता है। आत्मा तो मतलब दिखता ही नहीं है, तो
It is it's so minute, 1/10,000 part of the tip of the hair. तो इतना छोटा है तो उसका तो कटाने का सवाल है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को काट दिया तो सर में एक आत्मा घुस गया और दूसरा आत्मा शरीर में घुस गया, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दिस। इट इज आत्मा जो है वो भगवान का चीज है। इट इज ट्रांसेंडेंटल एंड नोबडी कैन इवन सी दैट, so no point of no even question of thinking कि उसका आत्मा का टुकड़े होगा। ओके जी, यस प्रभु। या उद्धव प्रश्न जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु लॉर्ड हैज गिवन दैट एबिलिटी, उसको जो है ना एक गुण दिया है छिपकली को। मतलब छिपकली कभी भी डेंजर में रहेगी ना, जब उसको लगता है कि उसको कोई पकड़ना चाहता है, उसको मारना चाहता है, तो वो क्या करती है, वो अपनी पूंछ छोड़ देती है। वो पूंछ कट नहीं जाती है, वो पूंछ छोड़ देती है और पूंछ उधर एकदम जो है ना एकदम विगरसली वो शेक होती रहती है थोड़े समय तक तक वो मतलब जब तक उसको मारने वाला उसकी जो विगरसली जो शेकिंग हो रही है इसकी यहाँ पूंछ की, उसको देख के वो विस्मृत हो जाता है, तब तक वो उसका जो आगे का हिस्सा है यानी पूंछ के आगे का हिस्सा है वो भाग जाता है। तो ये वो भगवान ने उसको दिया है, वो नेचर है। It's in nature that which has been the Lord has given it to this lizards. तो ये वो रीजन है। और जैसे माता जी ने अभी पूछा, जय माता जी ने पूछा कि भाई कैसे मतलब आत्मा निकली नहीं है, आत्मा तो उनके जो आगे का हिस्सा है उसमें है, ये पूंछ तो वापस ग्रो हो जाती है, यानी उसने शेड किया है। जैसे सांप है, सांप जो है वो थोड़े समय के बाद में अपनी जो है खाल छोड़ देता है, वो छोड़ देता है यानी इट डजंट मीन दैट कि उसका वो खाल है खाली इसकी, उसका आगे का शरीर तो जो खाल उसने छोड़ दिया और सांप आगे निकल गया, वो फिर उसके अंदर जीव तो है, तो इसके अंदर उसका जीव नहीं जाता है छिप कर वो। और दूसरा क्या होता है कि जैसे अगर मतलब हम लोग मोपेड चलाते हैं गाड़ी, उसके अंदर पेट्रोल खत्म हो जाता है, मगर मोपेड तो चलता रहता है ना थोड़ी समय तक, जब तक उसका प्रेशर उसमें से कम ना हो। वैसे ही ब्लड तो उसके अंदर दौड़ रहा है पूरे शरीर के अंदर। जैसे मैंने बकरी का मैंने नहीं बताया, मैंने बताया था मुर्गी का। तो मुर्गी को जब इसको काटते हैं तो वो 3 राउंड्स तक जो है फुटबॉल का स्टेडियम दौड़ सकती है, और इतना दौड़ती है, इतना उसके अंदर जो है पावर है, क्योंकि पूरा फोर्स उसने जो है पूरा लगा बचाने के लिए लगाया है, और उसकी गर्दन को किसी ने काट दिया, तो वो फोर्स कहाँ जाएगा? जो इनर्शिया जैसे बता रहे थे प्रभु, वो इनर्शिया है, जो बॉयंसी फोर्स है, वो कहाँ जाएगा? तो वो फोर्स तब तक चलता रहता है। जैसे अगर आपने एकदम पानी बहुत जोर से नल में आ रहा है, आपने तुरंत जो उसको पाइप को बंद कर दिया, तो जो पाइप के अंदर पानी है वो तो धीरे धीरे तो निकलेगा ना, वो कितने समय तक नहीं, मगर हम लोगों ने मेन टैप तो बंद कर दिया था। जो प्लास्टिक का लंबा पाइप होता है, आपने पहले चालू किया तो फोर्स से पानी आ रहा था, आपने नल बंद कर दिया, मगर जो पानी उस पाइप के अंदर था वो धीरे धीरे तो निकलेगा ना, जब तक पूरा कंप्लीट खत्म नहीं होता तब तक। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, यू एक्सप्लेन वेरी वेल। थैंक यू उद्धव प्रश्न। Very aptly you connected. Actually, what she was thinking कि अगर एक पार्ट यहाँ पे रह गया तो आत्मा 2 हो गई, तो एक यहाँ पे तड़प रही और वहाँ पे दूसरा चल रहा, ऐसा नहीं है। या तो जो है वो आत्मा जो है तो इन केस ऑफ छिपकली वो उसमें रहती है, तो खाली उसका एक फंक्शन है छिपकली का, भगवान ने उसको अपने बचाव के लिए या डिफेंस के लिए दिया। तो थैंक यू उद्धव प्रश्न। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक जय माता जी का जो पॉइंट था उसके ऊपर एक थोड़ा सा एडिशन करना था कि ये जो नेचर है, नेचर में प्रीडेटर और प्रे, इन दोनों को स्पेसिफिक मतलब उनके प्रॉपर्टीज डिफाइन किए हैं, जिसके वजह से प्रे प्रीडेटर से बच सकता है और प्रीडेटर प्रे को मार सकता है। इसमें ऐसा है कि छिपकली का जो है, छिपकली को पर्टिकुलर उसका फीचर ही है कि जब उस पे मतलब अटैक हो जाता है तो पहले वो अपनी वो जो पूंछ है वो छोड़ के भागती है। तो पूंछ उसकी हिलते इसके लिए रहती है कि जो प्रीडेटर है वो उसका नजर वो उसके हिलने वाले पूंछ पे जाएगी, मतलब पूंछ पे जाएगा, थिंकिंग दैट इज द ओरिजिनल प्रे करके।
और फिर जब वहां पे जाएगा तो दिखेगा वो पूछ है, लेकिन इन दैट मीन वाइल वो जो प्रे है, जो छिपकली है, वो एक सेफ्टी पे पहुंच जाती है। तो ये बेसिकली ये नेचर का एक ये है, मतलब प्रेडेटर और प्रे को एक दूसरे से मतलब मारने को और बचने का जो ये है वो नेचर ने बनाया है। जस्ट मतलब ये एडिशन करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू समय प्रभु। Thank थैंक यू समीर प्रभु फॉर द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी। मैं वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर पा रहा था, आपने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया। एंड दिस इज एंड व्हाट इज नेचर? नेचर इज लॉर्ड कृष्णा। सो दिस has been provided by प्रकृति है, प्रकृति is Lord Krishna himself. It comes from Krishna. So he has given this all this, he has made all these arrangements. Hare Krishna. थैंक यू उदय प्रभु। ठीक है, 10 साफ हो रहे हैं तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं उदय प्रभु जी का सेशन। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद